है उस प्रकार से भक्ति की जाती है, उतनी किस्म की भक्ति होती है। तो उतने वाइड वैरायटीज के ये पहला उत्तर दिया है उन्होंने ये पूरे अध्याय में। जो उनकी माता ने प्रश्न पूछा था, पहले तो माता को धन्यवाद किया कि आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत ही उत्तम पूछा है, कि सारे जगत में सभी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। और ये पहला आंसर दिया है उन्होंने। और ये नहीं बोला कि भक्ति एक ही किस्म की होती है, उन्होंने कहा अलग अलग किस्म की होती है। अभी उसका जो अनुवाद है, परपट है, श्रीला प्रभुपाद दिया है, वो इंग्लिश में दिया है, वो पढ़ते हैं। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट प्रभुपाद ने बोला कि प्योर डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वन, because in pure devotional service there is no demand from a devotee to be fulfilled by the Lord. ये क्लैरिफाई कर दिया श्रीला प्रभुपाद ने कि प्योर भक्ति में प्योर भक्ति एक ही किस्म की होती है, विभिन्न नहीं होती। और वो इस तरह की होती है कि उसमें कोई डिमांड नहीं होती भक्त का अपने स्वामी के प्रति, भगवान के प्रति। नो डिमांड्स, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मैं ये करूंगा, मुझे वो करूंगा, वो नहीं होता। अभी आगे बढ़ते हैं। अब मैं खाली इंग्लिश में बोल दूंगा ये सब, ठीक है? But generally, people take to devotional service with a purpose. As stated in Bhagavad Gita, people who are not purified take to devotional service with 4 purposes. A person who is distressed because of material conditions becomes a devotee of the Lord and approaches the Lord for mitigation of his distress. A person in need of money approaches the Lord to ask for some improvement of his monetary condition. Others who are not in distress or in need of monetary assistance but are seeking knowledge in order to understand the absolute truth also take to devotional service, and they inquire into the nature of the Supreme Lord. This is very nicely described in Bhagavad Gita chapter 7 verse 16. Actually, the path of devotional service is one without a second. वापस बोला उन्होंने बात. But according to devotee's condition, devotional service appears in multifarious varieties, as will be explained in the following verses. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandhasya Gnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guroho Shri Yutapad Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Scha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrushabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Krupa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Mahavishnu Goswaminiti Namine. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओके, तो अब श्लोक को हम वापस आते हैं। श्री भगवान उवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। Translation: Lord Kapila, the personality of Godhead, replied, O noble lady, there are multifarious paths of devotional service in terms of the qualities of the executor. मतलब कपिल मुनि, कपिल भगवान उनकी माता से उत्तर देते हैं कि भक्ति के विभिन्न प्रकार हैं। जितने प्रकार के भक्त हैं और जो तीन गुण जो हैं वो भक्त को जिस तरह से अफेक्ट करते हैं उस तरह से भक्ति की जाती है। अभी जब हमारे डिस्कशन प्रवचन में सबसे पहले सबसे लोएस्ट कैटेगरी की भक्ति का वर्णन करते हैं, देखते हैं वो क्या है लोएस्ट भक्ति, उसको फोर्थ कैटेगरी की भक्ति बोलते हैं। वो फोर्थ कैटेगरी की भक्ति भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय भगवद गीता में बताई है। वो श्लोक इस तरह से है, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। भगवान कहते हैं कि जो लोग बाकी देवताओं की भक्ति करते हैं ये समझकर कि किसी की भक्ति कर लो आप, आखिर में आप भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे, उनको ही जाएगा, इस तरह की भक्ति को भगवान ने अविधि पूर्वकम बताया है। इस श्लोक में जो लास्ट लाइन है, अविधि पूर्वकम यजंती, अविधि पूर्वकम यजंती मतलब पूजा करते हैं, अविधि पूर्वकम मतलब त्रुटिपूर्ण ढंग से, गलत ढंग से। श्लोक का जो अनुवाद है इस तरह से है, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, अविधि पूर्वकम। इसको कैसे समझा जाए? वो समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर हम नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में हमारे ऊपर एक सुपरवाइजर है जो हमारा बॉस है, पर उससे भी बड़ा बॉस जो है वो नौकरी जो बिजनेस कंपनी संभालता है उसका ओनर है, वो सबसे बड़ा बॉस, चेयरमैन। और अगर हम ये समझे कि मेरा सुपरवाइजर ही मेरा बॉस है, उसके ऊपर चेयरमैन की हम निंदा करें, निग्लेक्ट करें, तो उसे त्रुटिपूर्ण रीत से समझने वाली बात कहते हैं कि आखिर में सुपरवाइजर को भी नौकरी में रखा है वही बॉस ने सबका। तो अगर हम उसकी निंदा करें,
जब चेयरमैन की निंदा कर रहे हैं तो हमारी भी नौकरी जाएगी, सुपरवाइजर की भी नौकरी जाएगी। इसके लिए भगवान ने कहा यह अविधि पूर्वकम है, फोर्थ कैटेगरी की भक्ति है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक के परपट में श्रील प्रभुपाद ने बताया कि 4 किस्म के पायस लोग, पुण्य आत्मा लोग, वो मेरी भक्ति करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं 4 किस्म के लोग जो मेरी भक्ति करते हैं वो पुण्य आत्मा कहते हैं, क्योंकि भक्ति करने के लिए पुण्य चाहिए जो हमारे पास हो या न हो। हमारे पास हो तो हम भक्ति कर सकते हैं, न हो तो भक्तों की कृपा से हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है रखना, ताकि हम पुण्य आत्मा बन सके। पुण्यात्मा ये जो है, ये 4 किस्म के लोग जो भक्ति करने आते हैं भगवान की, वो 7वें अध्याय में ये श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। देखिए, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। एक जो है आर्त, दूसरे है जिज्ञासु, तीसरे है अर्थार्थी, और चौथे तथा ज्ञानी। अभी हम देखें उसको इंग्लिश में लिखा जाए तो अर्थ जो है, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं, उसमें अर्थ का मतलब यह होता है कि जो विपदाग्रस्त पीड़ित हो उसे अर्थ कहते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं वन हु इज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस हो। दूसरे किस्म के लोग हैं सुपायस कहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो है जिज्ञासु। वो ज्ञान के जिज्ञासु होते हैं, मुझे ज्ञान दो। हम सब इस तरह के लोग हैं, ज्ञान के जिज्ञासु। तीसरे किस्म के लोग हैं वो है अर्थ, जो लोभ, अर्थ अर्थी मतलब जो लाभ के इच्छा रखने वाले लोग। पैसे के भी लाभ, नाम का भी लाभ, हर चीज का लाभ, दोस्ती का भी लाभ। दोस्ती भी इसके लिए करते हैं हर किसी के साथ, इसीलिए भगवान की भक्ति भी करते हैं, कुछ लाभ मिले उसके बोलते हैं लाभ, अर्थ अर्थी, लाभार्थी। और चौथे किस्म के लोग हैं वो है ज्ञानी। अब ज्ञानी मतलब वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले तत्वज्ञ, उसे ज्ञानी कहते हैं। अब देखिए, साधारण परिभाषा में अगर कोई ज्ञानी हो तो हम उसे सिद्धात्मा बोल देते हैं कि वो सिद्धात्मा है, पर आखिर में सिद्धात्मा होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी उनको भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। तो ये 4 किस्म के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। अभी ये जो आर्त जो है, डिस्ट्रेस मतलब जो पीड़ित है, विपदाग्रस्त है, उस पर जरा गौर किया जाए। बिकॉज इसमें हम हमेशा सोच लेते हैं हाँ मैं भी थोड़ा विपदाग्रस्त हूं, मुझे नौकरी मिल जाए तो मेरी विपदा खत्म हो जाए तो मैं विपदाग्रस्त मैं भी हूं, या फिर मेरे बच्चों को एडमिशन मिल जाए, उसके अच्छे मार्क्स आ जाए एग्जाम्स में तो मेरी विपदाग्रस्त मैं हूं, तब तक मेरी बेटी की शादी हो जाए तो तब मैं विपदाग्रस्त हूं। तो समझा जाए विपदाग्रस्त चीज क्या है। मैं जब भारत में था, मेरी उम्र कुछ 20-22 साल की होगी, उस वक्त मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करता था। वहां पर मैं एक कंपनी में मुंबई में ऑडिट करना जाता था। तो वहां पर जो उनके चीफ थे, फाइनेंस के चीफ थे, उनको मिलते थे हम। हालांकि बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग थे, फिर भी हम मिलते थे, हम ऑडिटर थे।
तो एक बार जब हम गए वहां पर, पूरा ऑफिस में टेंस एटमॉस्फेयर था, और मुझे बताया गया कि ये हमारे चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं, वो बड़े पीड़ित हैं, विपदाग्रस्त हैं, बहुत बड़ी विपदा है उनमें आ गई उनके सर के ऊपर। मैंने कहा क्या हुआ भाई, ऐसी ऐसे क्या विपदाग्रस्त आ गई उन्होंने कहा देखिए क्या हुआ, उनकी बीवी, उनके बच्चे सब एक गाड़ी में जा रहे थे, वो नहीं थे, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उनमें सब चल बसे। आप समझिए, एक झटके में आदमी का जीवन हिल गया, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, अकेला रह गया वो आदमी। जब उसने मुझे बोला ये बात, तब मैं भी पीड़ित हो गया वो देखकर। इतना एटमॉस्फेयर टेंस, और वो आदमी शांत था, बहुत गंभीर था, अपने केबिन में काम कर रहा था, वो बाहर किसी से बात करता था, केबिन में जाता था, पर बहुत सीरियस था वो। और मैं कहता हूं दोस्तों, उसे बात करने की हम में हिम्मत नहीं हुई थी। बात कैसे करें उसके साथ, हमदर्दी भी कैसे दिखाए उसके साथ, क्या बोले, वो क्या गुजर रहा है उसमें, उसके जीवन में क्या गुजरा, क्या हो गया, उसकी मनस्थिति क्या है, वो हमें मालूम ही नहीं पड़ा। उसके पास जाने से डरते थे हम लोग। उसको बोलते हैं विपदाग्रस्त। वैसे लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं तो उसको पायस कहते हैं, पुण्यात्मा। फिर हमने देखा जिज्ञासु, जो जिज्ञासु, ज्ञान के लिए जिज्ञासु, वो हम जानते हैं ज्ञान के जिज्ञासु हैं। फिर हम अर्थी, जो लाभ की इच्छा रखने वाले लोग हैं, वो भी हम जानते हैं, बिजनेस करने वाले, भगवान मुझे ये करा दो तो मैं आपको वो कर दूंगा, इतने पैसे डोनेशन दे दूंगा, 4 नारियल नारियल रख दूंगा एक गाय को चारा खिला दूंगा, मेरा काम करा दो। बिजनेसमैन हो गए हम और तीसरे किस्म के लोग हैं जिसे कहते हैं कि वे लोग ज्ञानी, मतलब डेफिनेशन क्या दिया है कि वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले तत्वज्ञ, ज्ञानी। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, हमको लगता है हम भी ज्ञानी हैं, क्यों नहीं, हो सकते हैं, पर जनरली ज्ञानी लोग जो हैं उनको भगवान का हाथ नहीं दिखता। वो फिलोसोफर्स होते हैं, वो अपने ही मन के मेंटल कॉन्कॉक्शन से, मेंटली से स्पेकुलेट करके ऐसा होगा, वैसा होगा, उस तरह से जीवन हुआ, ऐसे उत्पन्न हुआ, बिग बैंग हो गई, वो स्पेकुलेट करने वाले लोग हैं। पर जो लोग स्पेकुलेट करते हैं, जो शास्त्र के हिसाब से नहीं चलते, उनको फ्रस्ट्रेशन होता है, इसीलिए वे आते हैं यहाँ पर भगवान की भक्ति करने के लिए। उसका उदाहरण देता हूं मैं, उसका भी एग्जाम्पल है। हम हर शनिवार को प्रोग्राम करते थे, अभी रविवार को होता है हमारा प्रोग्राम, प्रीचिंग प्रोग्राम, पर हर शनिवार को हम प्रोग्राम करते थे। हमारे घर पे प्रोग्राम होता था, लोग आते थे हमारे घर पे, और हम प्रसाद के साथ सब कुछ प्रोग्राम होता था पूरा। तो एक बार सुबह मेरी वाइफ उठी प्रोग्राम के, हाँ उठा, मेरी वाइफ उठी और उन्होंने देखा कि एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा वो हमारे घर के बाहर आंगन में खड़ा था और उसे ताक रहा था, मेरी वाइफ को, मेरी पत्नी को। आंखों में बहुत करुणा थी उसकी, वो बोलना चाह रहा था, बच्चा छोटा सा था। हमारे घर के चारों ओर फेंस थे,
तो जो हमारे घर आए हैं, यहाँ पर हैं हिरण्य पंडित, वो मैंने देखा, शायद वो भी हैं, वो आए थे, वो प्रोग्राम में वो भी आए थे, वो जानते होंगे, मैं देखता हूँ। हरि बोल प्रभु जी। तो जब वो देखा हमने, हमको लगा अरे बेचारा बेचारा बेटा, वो गिर गया। मुझे लगा कि बाजू में झाड़ थे, उसमें से घोंसले में से गिर गया है, तो उसकी माँ कहीं होनी चाहिए। तो बराबर थी माँ, वो फेंस के ऊपर बैठी थी, चुप चुप कर रही थी, पुक पुक, और वो उसको डायरेक्शन दे रही थी बच्चे को, ज्यादा जाना मत, दूर चले जाओ, हटो वहां से। दो तीन चीजें बोलती थी, पुक पुक पुक, बच्चा चले जाता था, उड़ के जाता था वहां पर। फिर भी वापस हमारे पास आता था कि बच्चा है ना, इंक्विजिटिव था, जिज्ञासु था वो। तो वैसे पूरा दिन था वो वहां पर, उसकी माँ उसकी देखभाल करती थी ना। मुझे, मैं और मेरी पत्नी, मेरा बच्चा सन, तो बहुत छोटा था वो भी, 5-6 साल का होगा वो। हम तीनों लोग बहुत दुविधा में पड़ गए कि बच्चे की हम कैसे सेवा कर सकते हैं, वो गिरा हुआ है ऊपर से घोंसलों से, और यहाँ पर कैट बिल्लियां वगैरह आ सकती है, बाजू वालों की ना पेट बिल्ली, वो खा लेगी इसको। तो उसको हम निकाले वहां से, ले वहां से, उसकी माँ डर जाएगी, क्या करे, पानी दे, कैसे जिएगा ये, कैसे करेगा ये। तो घंटों निकल गए उस पर। फिर मैंने देखा, वो देखकर मैं चौंक गया। मैंने ये देखा कि उसकी माँ ने आकर जमीन में से अर्थ वॉर्म, वॉर्म बोलते हैं ना, कीड़े, वो निकाले और बच्चे के मुंह में डाले। बच्चे ने मुंह खूब बन के खा लिया। वापस गई, वापस उस कीड़े पिकड़े पकड़े और उसे बच्चे के मुंह में डाले और खा गया बच्चा। तब मेरा सिर फिर गया। तब मुझे लगा अरे, अभी मैं, अब तक मैं बच्चे के लिए डर रहा था कि उसके क्या होगा बेचारे के साथ, अभी मैं कीड़े के लिए डर रहा हूं कि कीड़े के भी तो बच्चे होंगे, उसके भी तो माता पिता होंगे, उसको खिला रहे तो मर जाएंगे, अब मर गए तो मैं किसके लिए रहूं, बच्चे के लिए रहूं, वो चिड़िया के, या कीड़ों के लिए रहूं मैं, कि वो भी तो जीव है। सी, ये बात जब हम समझते हैं, तो हम समझते हैं कि जो ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, उनको इसका आंसर नहीं मिलता, एम्पिरिक फिलोसोफर्स को इसका आंसर नहीं मिलता। ये बात इंपॉर्टेंट है। वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि किस पर करुणा दिखाए वो। दोनों जीव है, कीड़े के भी बच्चे होंगे, ये मादा ने पिकड़े डाल दिए मुंह पर, वो मर गया, उसके बच्चे रोएंगे, तो किन किन पर रोए हम? पूरी दुनिया में सब लोग पीड़ित हैं, किन किन पे रोए हम? ये ढूंढने के लिए ये लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उनको बोलते हैं तत्वज्ञानी। तो ये 4 किस्म के लोग जिसे भगवान ने पुण्यात्मा लोग कहे हैं, वो आते हैं। आर्थ मतलब जो पीड़ित हो, विपदाग्रस्त पीड़ित हो। दूसरा है वो जिज्ञासु, जो ज्ञान के लिए जिज्ञासु हो। तीसरे हैं वो अर्थार्थी, मतलब जो लाभ की इच्छा रखने वाले लोग हैं। और चौथे ज्ञानी, जो वस्तुओं को सही रूप से जानने वाले लोग। ये 4 किस्म के लोग भगवान की भक्ति करते आते हैं। ठीक है, अभी जो भक्ति करते हैं वो हमने एक बार देखी, जो 4th कैटेगरी की, जो बाकी देवताओं की भक्ति करे भगवान को समझकर, तो 4th कैटेगरी के मानते हैं। पर जनरली 3 अलग अलग रीत की प्रकारों की भक्ति होती है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ भक्ति होती है। जो पहली है, उसमें पूर्णता पूर्वक खाली भक्ति की जाती है भगवान की। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं परपट में कि प्योर डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वन, because in pure devotional service there is no demand from the devotee to be fulfilled by the Lord. भगवान को टेंशन नहीं होता है कि इसके मैं क्या करूं इसके लिए। बाकी सब लोग आगे पैसे मांगते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, पैसा मांगते हैं, अच्छा हस्बैंड मांगते हैं, अच्छी बीवी मांगते हैं, पढ़ाई मांगते हैं, घर मांगते हैं, मांगते रहते हैं। पर प्योर भक्ति में भगवान को कुछ भी मांगा नहीं जाता, तो भगवान थोड़ा आराम से निश्चित होते हैं। उसको कहते हैं केवल भक्ति।
ये उत्तम भक्ति की जाती है, केवल भक्ति। दूसरे किस्म की भक्ति है मिश्रण है, बाकी दोनों भी मिश्रण भक्ति है। पर ये जो पहली मिश्रण भक्ति है जिसमें भक्ति की मात्रा थोड़ी ज्यादा है बाकी मिश्रणों के आधार पर, जैसे कि बाकी बिजनेस डीलिंग थोड़ा कम होता है, मिश्रण थोड़ा कम होता है, भक्ति थोड़ा ज्यादा होती है, पर मिश्रण होते ही है। इसको बोला, उसका नाम है प्राजस्यना भक्ति, प्रजस्यना भक्ति। और तीसरी प्रकार की भक्ति ऐसी है जिसमें पूर्णतः मिश्रण होता है, जिसमें भगवान की भक्ति कम और बिजनेस डीलिंग ज्यादा हो, गुण ज्यादा हो, तीनों गुण ज्यादा हो, उसको गुण भाव भक्ति कहते हैं। ठीक है ना? तो उत्तम भक्ति जिसमें खाली केवल भक्ति हो, फिर दूसरी है प्रजस्यना भक्ति जिसमें वो मिश्रण भक्ति हो पर भक्ति की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो बाकी चीजों से, बाकी चीजों भी होती है उसमें। और तीसरी है मिश्रण भक्ति, वो भी, और उसमें भक्ति की मात्रा कम हो और बाकी गुणों की ज्यादा हो मात्रा, उसे गुण भाव बोलते हैं। अभी ये जो भक्ति है उत्तम भक्ति, उसको जान ले थोड़ा हम। तो इस तरह के 4 किस्म की भक्तियां हैं, हमने जानी अभी। ठीक है? और वही कपिल मुनि कहते हैं कि भक्तों के अनुसार, अनुरूप, उनके नेचर, स्वभाव के अनुरूप, जो गुणों के अनुरूप भक्ति की जाती है। तो इस तरह से 4 किस्म की भक्ति है ना। उत्तम भक्ति हमें करनी है, तो उत्तम भक्ति है क्या, उस पर गौर किया जाए। पहले गौर करने से पहले फर्स्ट स्टेप होता है कि उसका डेफिनेशन ढूंढा जाए, परिभाषा उसे कहते हैं, वो ढूंढी जाए उत्तम भक्ति की। 2 डेफिनेशन है भक्ति की। एक जो डेफिनेशन श्री रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कही है, वो कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स 11। इंटरेस्टिंग, 1:11। अन्या विलासित शून्यम दान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उसमें अन्या विलासित शून्यम, बाकी हर चीज शून्य हो, ज्ञान कर्म आदि, ज्ञान कर्म आदि कुछ न हो, कोई लाभ न हो। आनुकूल्येन कृष्णानु, वो अनुकूलता पूर्वक जब भक्ति करते हैं कृष्ण के प्रति, शीलनम मतलब उसमें कुछ भी मोज न हो, कोई गुण न हो, शीलनम भक्ति उत्तमा, वो भक्ति जो है वो उत्तम भक्ति है। ये डेफिनेशन दिया है सेम जो प्रभुपाद कहते हैं, उसमें भगवान को कुछ देना नहीं होता, भक्त मांगता नहीं, भगवान देता नहीं, तो भगवान सब कुछ देता है वो भक्त को मांगे बगैर। दूसरा डेफिनेशन जो है परिभाषा भक्ति की, वो नारद मुनि ने दी है, श्री नारद मुनि ने, श्री नारद पंचरात्र में है। वो श्लोक इस तरह से है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। अब देखिए, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि, उपाधियां जो हमारे पास है, हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। मेरा नाम अम्बरीश दास, अम्बरीश देसाई, मैं इनका बेटा हूं, मैं इनका पति हूं, इनका हस्बैंड हूं, इनका फादर हूं, उनका फ्रेंड हूं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा चेयर है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरी मोबाइल फोन है, ये मेरा बेड में पिलो है, ये सब उपाधियां हैं मेरी। कोई मुझे चाचा बुलाता है, कोई मुझे भाई बुलाता है, मेरी उपाधियां हैं। और जो मेरे कुछ दोस्त हैं मुझसे ओल्ड हैं, वो दादा बन गए हैं, तो मैं भी दादा बन गया हूं साथ में, वो भी उपाधि है। तो मैं उसे कहता हूं, भाई तुम मुझसे बड़े हो, तुम्हारे बेटों और बेटी की शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं, तो आप खुश हो कि आप दादा बन गए। पर मैंने क्या गुनाह किया कि मैं भी बन गया साथ में दादा? मुझे तो कम करना है ऐसे उपाधियां।
पर ये मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में हम इससे छूट नहीं पाते उपाधियां से। पर फिर भी उपाधियां लेकर जब हम उसे मुक्त हो जाते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, वॉलंटरीली हम अपने आप से उसे मुक्त मुक्त कर लेते हैं। तत्परत मेरा निर्मलम, वो निर्मल स्थल में उपाधि के बगैर ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिकेन मतलब हमारे ऋषिक जो है, ऋषिक मतलब सेंसेस, इंद्रियां हैं हमारे, उस वो स्टेज पर, वो निर्मल स्टेज पर जब हम अपने इंद्रियों को ऋषिकेश, मास्टर ऑफ द सेंसेस, भगवान ऋषिकेश के लिए सेवनम भक्ति रुच्यते, उसकी सेवा में लगाते हैं, वो उत्तम भक्ति की जाती है। वो निर्मल स्टेज में जो हम हमारी इंद्रियों को ऋषिकेश की इंद्रियों के लिए, सेवा के लिए यूज करते हैं, तो उसे उत्तम भक्ति कहते हैं। चैंटिंग करो भगवान की, रिलेशनशिप, चैंटिंग का मतलब होता है हम भगवान से प्रेम का इजहार करते हैं, उसे कहते हैं चैंटिंग। आई लव यू कृष्णा, एंगेज मी इन योर, प्लीज एंगेज मी इन योर लविंग डिवोशनल सर्विस। ये शास्त्र से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का मतलब, भक्त का मतलब लव। हरि नाम चिंतामणि, ये नाम जो है वो चिंतामणि है। चिंतामणि में आप जो भी पूछो मिलता है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सप्रेशन ऑफ लव। हम प्रेम जब करते हैं किसी से तो एक्सप्रेस करते हैं वो लव, वो चैंटिंग है, वो भाव से चैंटिंग करना है हमें, वो उत्तम भक्ति है। अभी भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में ही उत्तम भक्त की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि वो 3 क्या चीज करते हैं उत्तम भक्त। वो 11वें अध्याय में बताया है। ये श्लोक है, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समाम एति पांडव। सो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर, देखिए सकाम कर्मों, अच्छे कर्मों से भी मुक्त, और मनोधर्म के कल्मश से भी मुक्त होकर, मतलब मेंटल कॉन्कॉक्शन से मुक्त होकर क्या करता है, मेरी शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। फिर कहते हैं जो नंबर 1 3 चीजें बताई है भगवान ने, जो एक मेरे लिए ही कर्म करता है, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए ही कर्म करता है, सेवा करता है, जो भी करता है, पैसा कमाता है, जो भी करता है। दूसरा, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है। और तीसरा, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान ने दी है उत्तम भक्त की। जो भगवान को प्राप्त कौन करता है, वो चीज करते क्या है, ये 3 करते हैं। एक है, पहली बात तो ये है कि जो सकाम कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। तो हम जानते हैं अच्छे कर्म, एक तो कर्म है, दूसरे है विकर्म है, खराब कर्म है, और सकर्म है, अच्छे कर्म, उससे भी मुक्त हो जाता है। और जो मनोधर्म मतलब मेंटल कॉन्कॉक्शन, हम लोग सब मेंटल कॉन्कॉक्शन से पीड़ित हैं। मन जो है कंट्रोल में नहीं है हमारे। नेक्स्ट टाइम हम उसके बारे में बात करेंगे, मन, माइंड, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द माइंड। मन हमारे कंट्रोल में नहीं, और माइंड ने हमें कंट्रोल कर रखा है। तो भगवान कहते हैं कि जो सकर्म से भी मुक्त हो और जो मनोधर्म से भी मुक्त हो,
वो 3 चीजें जो करता है, जो मेरे लिए ही काम करता है, कर्म करता है, दूसरा जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और तीसरा जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता हो, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अभी ये तो समझे एक बात कि जो मेरे लिए ही कर्म करता है, ठीक है, भगवान के लिए कर्म करे, प्रैक्टिकली हम समझ पाते हैं। जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, वो भी हम समझ पाते हैं, ठीक है। पर जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता हो, वो भी इंटरेस्टिंग बात है। इसे कैसे समझा जाए? इसे कैसे समझा जाए? हमें सभी जीव से मैत्री भाव रखता हो, ठीक है, मैं सबसे मैत्री भाव रखता हूं, बरोबर है, इसको भी समझना पड़ेगा हमें। चलो समझते हैं। उसे समझने के लिए हमें महाराज युधिष्ठिर के पास जाना पड़ेगा, और उसमें मेरी एक स्टोरी है, मेरी दुविधा है, वो बताता हूं। महाराज युधिष्ठिर के बहुत सारे नाम हैं, धर्मराज, फिर युधिष्ठिर महाराज, और अजात शत्रु, ये भी एक नाम है उनका। मतलब जिसका कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ। जब मैंने ये पढ़ा, उनका ये नाम की परिभाषा, अजात शत्रु, जिनका कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ, तब मुझे लगा मैं तो गया, मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, फिनिश्ड। मैं तो कितने दुश्मन देखता हूं आजू बाजू, भले अभी क्या किया जाए? मैं बहुत दुविधा में रह गया, बहुत पीड़ा हुई मुझे। तकरीबन 6-8 महीने मैं बहुत डिप्रेस रहा ये बात से कि मुझे चांस ही नहीं है। मैं किन किन को ढूंढूं, किन किन से मेरी सहूलियत कराऊं, दोस्ती बनाऊं, क्या करूं मैं? बहुत बहुत परेशान था। तब मैं राजकोट में आया। उस वक्त महाराज हमें प्रेम से बुलाते थे, और मैं काफी दिन रहता था। वैष्णव साहब प्रभु जानते होंगे, 15 दिन 20 दिन फैमिली के साथ आके रहता था। मेरे लिए वही था मेरा घर। मेरा बच्चा कहता ना था, मेरा ग्रैंडफादर का घर है ये। हम वहीं पर रहते थे। महाराज कहला यहीं पर रहो, बोला यस महाराज, आ गया। तो उस वक्त महाराज कहते थे कि आप जब पढ़ते हो अम्बरीश, तो आप लिखा करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है नोट्स बनाओ, अंडरलाइन करो। महाराज ये भी कहा था, भागवतम फाड़ दो, इतना लिखना चाहिए भागवतम पे, पूरी फट जानी चाहिए भागवतम, इतना लिखो, उतना एंग्रॉस हो जाओ। और सर बोलते थे कि एक बुक रखो, इसमें आप पॉइंट्स लिख दीजिए। तो मैंने पॉइंट लिखा था ये, धर्मराज युधिष्ठिर, अजात शत्रु, वन हुज एनिमी इज नेवर बॉर्न। तो जो मुझे पीड़ा करता था वो, तो महाराज बोला बुक दिखाओ। तो मैंने महाराज के, मैं चरणों पर था, तो महाराज ने मैंने बुक दिखाई। महाराज ने बुक खोली, ऐसा पन्ना खोला, वही पन्ना खोला, और वही शब्द पे उन्होंने उंगली रखाई, बोला ये क्या है अजात शत्रु, मतलब क्या? उसका क्या मतलब हुआ अम्बरीश? बोला मुझे वही तो जानना था। वही मुझे पीड़ा कर रहा था। मैंने कहा महाराज, जिसके कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ। बड़े रो के मैंने बोला, मेरी तो परिस्थिति गई यहां से, महाराज ने मेरे कर्म लिए हैं। कितने कर्म दे रहा हूं मैं, बुरे बुरे कर्म महाराज को। तो महाराज ने कहा ठीक है, जिसका कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि महाराज हमेशा प्रैक्टिकल चीज सिखाते हैं। पर इसका क्या मतलब हुआ? मुझे एक्चुअली वही आंसर चाहिए था, इसका क्या मतलब हुआ? बोला नहीं मालूम महाराज। महाराज ने कहा उसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी नहीं जिसे युधिष्ठिर महाराज अपना दुश्मन समझते हैं। मैंने कहा आंसर मिला मुझे, खुश हो गया मैं, चांस है मेरे पास। अब देखिए, पूरी परिभाषा चेंज कर दी महाराज ने अंडरस्टैंडिंग में। वन हुज एनिमी इज नॉट बॉर्न, जिसका कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ, उसका मतलब यह भी होता है कि जो किसी को अपना दुश्मन समझता ही नहीं। ये जब महाराज ने मुझे कहा, तो एक फ्लैश में पूरी बात समझ में आ गई मुझे। यह भी बात समझ में आई कि कुरुक्षेत्र के वॉर में, जंग में, पूरी दुनिया आई थी। उसमें आधी से ज्यादा दुनिया तो युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए आई थी।
तो उसको अजात शत्रु कैसे बोला जाए? अगर आधी से ज्यादा दुनिया उसको मारने के लिए आई थी और दुर्योधन को राजा बनने के लिए आई थी, तो वो उनके दुश्मन हुए कि नहीं हुए? युधिष्ठिर महाराज के बराबर हुए दुश्मन। पर युधिष्ठिर महाराज ने कभी उनको अपना दुश्मन नहीं माना। ये परिभाषा मुझे समझ में आ गई, लगा फ्लैश। ये आंसर है। तो होप है, हम सभी के लिए होप है। अगर हम किसी को दुश्मन न माने, और युधिष्ठिर महाराज ने उनको मार भी डाला, सभी को मार डाला, राजा बने, पर वो धर्म के हिसाब से हुआ, पर मारा जरूर। ये परिभाषा हमें सोचकर, शांतिपूर्वक सोचकर हमें समझनी होगी, ताकि हम परस्पर रिलेशनशिप्स जो है उसको डेप्थ में ला सकें। लोग करेंगे ही करेंगे जो चीजें जो है आपको पसंद हो ना पसंद हो, बनेंगे आपके दुश्मन। अगर आप किसी से बात करो तो दुश्मन, नहीं बात करो तो भी दुश्मन। बात नहीं करता मेरे साथ, दुश्मन। तो करें क्या आप? इसीलिए लोगों को जो समझना है समझने दो। अगर हम भक्ति करते हैं, हम मन से किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, तो हम भी अजात शत्रु बन सकते हैं, जिसे कोई शत्रु नहीं हुआ। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान ने बताई, जो मेरे लिए यही कर्म करता है, जो मुझसे ही जीवन लक्ष्य मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और तीसरा, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता हो, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अभी अर्जुन ने भगवत गीता में ही प्रश्न पूछा कि भगवान मुझे बताए, उन्होंने भगवान को, कृष्ण को अपना गुरु मान दिया था ना, कि मुझे बताया कि ऐसे लोग जो आपकी भक्ति करें, वो लोग दिखते कैसे हैं? उनके क्या 2 सिंह है क्या? वो चलते कैसे हैं? वो उड़ते कैसे हैं? वो बैठते कैसे हैं? वो सोते कैसे हैं? वो खाते क्या है? वो बोलते क्या है? मुझे समझाओ उसके बारे में। ये इंटरेस्टिंग, ये प्रश्न एकदम शुरुआत के अध्याय में, दूसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछे हैं, और उसके 4 आंसर भगवान ने दिए हैं 4 श्लोक में। मैं सबके खाली ट्रांसलेशन हिंदी के में बोलूंगा, अब सुनना बराबर। पहला आंसर उन्होंने दिया भगवान ने, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त, दैट इज स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। देखिए, यहां पर भी भगवान कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति, मतलब मनोधर्म से मतलब मेंटल कॉन्कॉक्शन, यहां पर वही बात कही भगवान ने, मेंटल कॉन्कॉक्शन। जब मेंटल कॉन्कॉक्शन से जब हम अपनी इंद्रिया तृप्ति करने के शुरू करते हैं, उसका परित्याग करता है, तो स्थित प्रज्ञ जाना जाता है, क्योंकि वो फिर अपने आप में, अपनी चेतना में शांत हो जाता है, कोई पीड़ा नहीं होती उसे। अभी एक बात, हम ये टाइम मैं देख रहा हूं 1 घंटा हो गया, पर इसको भी हम परिभाषा में समझ सकते हैं, क्योंकि जो अटैचमेंट जो है, वो अटैचमेंट मेंटल लेवल पे ज्यादा होती है, फिजिकल लेवल पे बाद में होती है, पहले मेंटल लेवल में होती है। वो भी श्लोक्स हैं, ठीक है, कि पहले अटैचमेंट मेंटल लेवल से होती है, उसके बाद अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट से फिर लाभ होता है, उसके बाद लोभ होता है, उसके बाद एंगर होता है, उसके बाद बुद्धिमती मर जाती है।
इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, मेमोरी इज bewildered, and then one falls on again, वापस फिर चक्रव्यूह में फंस जाता है गुणों के। अच्छा, दूसरी बात भगवान कहते हैं कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो असक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो पहले स्थितप्रज्ञ बताया, अभी मुनि कहलाया, जो स्थिर मन वाला, 3 गुणों से बचकर रहने वाला। थर्ड पॉइंट बताया भगवान ने, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। उसको पूर्ण ज्ञान में कहता है, परफेक्ट नॉलेज में स्थिरता उसको मिलती है। और लास्ट पॉइंट ये कहा है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है, कछुआ की तरह। क्योंकि एंजॉयमेंट करने के लिए बहुत कुछ है, पर जैसे कछुआ जो अपने हल के अंदर चारों हाथ पैर अंदर ले लेता है, उसी तरह से इंद्रियों को वो आदमी वश में करके, वो मुनि, वो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, वो भक्त हमेशा से कंट्रोल करता है, उसे दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है, वो मेरा भक्त होता है। अभी ऐसी सिद्धि ये 4 बताया भगवान ने, है ना, स्थितप्रज्ञ, मुनि, स्थिर होना, भक्त होना, कंट्रोल करना। तो ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त हो सकती है सिद्धि, उसका आंसर बताओ। वो आंसर भी भगवान ने उसके 5वें श्लोक में दिया है। भगवान ने कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। So Lord Krishna says, the embodied soul मतलब जो आत्मा जो शरीर में दबी है, केज्ड है, मे बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट, उसको आप दबा सकते हो, इंद्रियों की तृप्ति मत करो, कर सकते हो, इंद्रियों को आप पकड़ सकते हो जबरदस्ती से। दो द टेस्ट फॉर द सेंस ऑब्जेक्ट्स रिमेन, उसका टेस्ट तो रहता है। अगर आपको दारू पीने की आदत हो, आप छोड़ दी हो, फिर भी थोड़ी टेस्ट ले सकती है। सेक्स की तो होती है, सभी को होती है, टेस्ट जाता ही नहीं, सेक्स का नहीं जाता। बट ये बट बहुत जरूरी है, कृष्ण ने कहा, बट परंतु सीजिंग सच एंगेजमेंट, वो सब एंगेजमेंट जो वो कार्य को बंद करके, बाय एक्सपीरियंसिंग हायर टेस्ट, उनका टेस्ट चेंज करके, ही इज फिक्स्ड इन मी, जो करता है वो मुझ में, मेरी भक्ति में स्थिरता पूर्वक आगे बढ़ता है। तो मतलब ये है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें इंद्रियों को दबाने की, करनी तो पड़ेगी, कंट्रोल करने की पड़ेगी, पर जब तक जो इंद्रियों को हम एंजॉयमेंट दिखता है, मैं खाने में, दारू पीने में, सिगरेट पीने में, तंबाकू खाने में, सेक्स करने में, जो भी करने में वो एंजॉयमेंट मिलता है, उससे वही इंद्रियों को हम किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करें जिसमें एंजॉयमेंट कुछ ज्यादा हो, तो फिर ये एंजॉयमेंट कम पड़ जाएगा। इसको कहते हैं हायर टेस्ट। और यही बात
शिला प्रभुपाद ने हमें सिखाई है। जब जप करते हैं, प्रसाद खाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं, खुद पढ़ना भी बहुत जरूरी है। सुनना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, पर खुद पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पढ़ने के बाद उसे इंप्लीमेंट करना जरूरी है, समझना जरूरी है। उस पे हम जब बाकी सब चीजें करते हैं, भक्ति की संकीर्तन करते हैं, ड्योटी के साथ मिलते हैं, उससे डबल गुना ज्यादा हमें ये भागवतम और भगवद गीता के साथ बैठकर श्लोकों को समझकर, मेमोराइज करके, उनकी परिभाषा समझकर उसे क्या कैसे अमल में लाया जाए वो समझकर डबल टाइम ज्यादा हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम वो इंद्रियां जो है, जो एंजॉय कर रही है लोअर लेवल पर, उसको हम हायर टेस्ट न दें, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर भले हमने 10 साल गुजारे, 20 साल गुजारे, 30 साल गुजारे, पूरा जीवन गुजारा और कई जीवन गुजार दिए, पर जब तक हम ये हायर टेस्ट नहीं ला पाते हैं, नहीं होगा। कैसे लाए हायर टेस्ट? सेम है ऑप्शन, उसमें नई बात नहीं है, वही है। मंगल आरती हो, वही है चैंटिंग हो, शास्त्र की ज्ञान हो, एसोसिएशन हो। तो शुरुआत में ये सब कड़वा लगता है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया गया है बात। रूप गोस्वामी कहते हैं जॉन्डिस के जैसा पिलवा हो जाता है ना किसी को, तो उसको शुगर कैंडी जो है, मीठा कुछ दे दो तो पसंद नहीं आएगा, उससे नहीं आएगा पसंद, पिलवा हो जाता तभी। पर पिलवा का जो, जॉन्डिस का जो सोल्यूशन है, मेडिसिन है, वो स्वीट ही है। जब भी वो स्वीट खाएगा और स्वीट का टेस्ट स्वीट लगेगा, तब मालूम पड़ेगा कि मैं अभी जॉन्डिस निकल गया मुझ में से। ये बात है। तो इसमें और कुछ ज्यादा मत ढूंढिए कि और मुझे आंसर बताइए। इसमें कुछ कोई मंत्र नहीं है ज्यादा कि बड़ा अच्छा मंत्र, कितना अच्छा लगा। भक्त है हम, शास्त्र पढ़ते हैं, जो समझा वो बताते हैं। तो हायर टेस्ट जो दी गई है, हमको खुद को झगड़ना पड़ेगा अपने आप से, और हायर टेस्ट लाना पड़ेगा। जब इंद्रियों की तृप्ति तभी होगी, तभी जो टेस्ट है लोअर, वो बंद हो जाएगा हायर टेस्ट से। ये आंसर है। अब मैं खाली क्विकली समराइज कर लेता हूं, हमने क्या डिसाइड किया, क्या क्या बात हुई हमारी। जो श्लोक है, श्लोक का जो ट्रांसलेशन है वो ये है, आज हम बात कर रहे थे वो, कि लॉर्ड कपिल मुनि कहते हैं उनकी माता देवहूति से, कि जितने किस्म के लोग हैं, उतने किस्म के लोगों के स्वभाव हैं, उतने गुण हर लोग में होते हैं, स्वभाव बनता है, उस तरह से भक्ति की जाती है। वो अंडरस्टैंडिंग में हमने देखा कि 4th ग्रेड की भक्ति, 3rd ग्रेड में, 4th ग्रेड की लोएस्ट भक्ति में लोग जो हैं बाकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये समझकर कि भगवान की करते हैं। उसको भगवान ने अविधि पूर्वकम बताया गया है 9वें अध्याय में। उसके बाद हमने देखा कि 4 किस्म के पुण्यात्मा लोग भक्ति करने आते हैं। उसमें अर्थ जो पीड़ित हो, विपदाग्रस्त हो, हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा। जिज्ञासु हो, जो ज्ञान के जिज्ञासु हो, जो अर्थी हो, जिसको लाभ इच्छा हो किसी भी चीज की, वो पर भक्ति करने आते हैं। और चौथे जो ज्ञानी हो, तत्वज्ञानी हो, जो वस्तुओं को सही रूप से जानने वाले हो, तत्वज्ञ, वो भगवान की भक्ति करने आते हैं। हमने उसका भी एग्जाम्पल देखा, वो बर्ड का। फिर हमने देखा कि भगवान ने जो प्योर डिवोशनल सर्विस जो है, प्योर भक्ति जो है, वो क्या है, उसमें 3 किस्म की मिश्रण होती है। भक्ति 3 मिश्रण होती है, प्योर होती है, दूसरी जो है प्रजस्य भक्ति, जिसमें मिश्रण में भक्ति कम, भक्ति ज्यादा, बाकी मिश्रण कम, और तीसरा जो है गुण भाव भक्ति, जिसमें मिश्रण में भक्ति कम, बाकी चीज ज्यादा होती है। तो 3 किस्म की भक्ति हमने देखी।
फिर उत्तम भक्ति जो केवल भक्ति है, उसकी दो परिभाषाएं देखी हमने। श्री रूप गोस्वामी ने डेफिनेशन दिया वो, और नारद मुनि ने डेफिनेशन दिया है वो, उसको समझा। फिर हमने देखा कि भगवान ने उत्तम भक्त के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, जो 11वें अध्याय में बताए हैं, कि जो सकाम से भी मुक्त हो, सकाम कर्म से भी मुक्त हो, मनोधार्मिक कल्म से भी मुक्त हो, मेंटल कॉन्कोक्शन से भी मुक्त हो, मेंटल कॉन्कोक्शन और सकाम से भी मुक्त हो, और जो मेरे लिए ही कर्म करता हो, एक दूसरा जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता हो, और तीसरा जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता हो, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, उस पर हमने युधिष्ठिर महाराज की परिभाषा देखी, अजात शत्रु से मैंने अपना एग्जाम्पल बताया महाराज से। उसके बाद हमने देखा कि अर्जुन पूछता है कि ये प्योर भक्त, केवल भक्ति करने वाले लोग कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या चलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोते हैं, क्या खाते हैं। उसके हमने 4 आंसर्स देखे, भगवान दिए हैं, वो भी दूसरे अध्याय में है। एक स्थित प्रज्ञ बताया महाराज ने, भगवान ने। दूसरा बताया जो मुनि हो, तीसरा जो है वो स्थिर आदमी हो, और चौथा कछुए की तरह जो जीता हो हमेशा से। और फिर हमने देखा कि ये सब करने के लिए क्या करना चाहिए, वो 5वें आंसर में, श्लोक में भगवान ने दिया है कि हमें हायर टेस्ट लाना पड़ेगा। उसके बारे में हमने बात की, और वो हमें खुद को लड़ झगड़ कर, अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन से, मन से झगड़ कर, इंद्रियों से झगड़ कर, सेंसेस को आगे बढ़ाकर, टेस्ट चेंज करके, उसी वक्त जब हमारा टेस्ट चेंज हो जाए, तब भी हमको लोअर टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वरना ये सेक्स, ये खाना पीना, जुआबाजी, झूठ बोलना, सच बोलना, पॉलिटिक्स खेलना चलता ही रहेगा। ये श्लोक में मैं इतना ही समझा हूं। मेरी इंटेलिजेंस बहुत कम है, समय भी नहीं है। आप लोग में से बहुत सारे लोग, सभी लोग श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के स्टूडेंट्स हैं, अथॉरिटीज हैं। तो आप प्लीज फील फ्री, आप अपना ज्ञान शेयर कीजिए। मैंने सडनली सब पॉइंट्स नहीं बताए, मेरी उतनी बुद्धि भी नहीं है। सो वी प्लीज फील फ्री टू शेयर योर रियलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। श्रीला गुरुदेव की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कांट हियर यू। आप भाविक जी, आप बता रहे कुछ? यस प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। आपने शुरुआत में बताया कि जो निम्न क्वालिटी के, फोर्थ क्वालिटी के जो लोग होते हैं, वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अभी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, लेकिन कितने रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें घर परिवार में कुछ देवी देवताओं की पूजा करनी मैंडेटरी हो जाती है। जैसे हिंदुओं में शादी के वक्त गणपति की पूजा होती है, वो मैंडेटरी हो जाती है। तो क्या उस वक्त हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, या तब भी सिर्फ कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए और उनकी पूजा का साइड करनी चाहिए? श्रीला प्रभुपाद, उत्तम प्रश्न है, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। श्रीला प्रभुपाद ने कहा था कि गणपति की पूजा होती है, और कई जगह पर इस्कॉन के मंदिर के बाहर भी गणेश जी की होती है मूर्ति। हम अलग से पूजा नहीं करते, पर जो रिचुअल्स हैं हिंदू रीत के हिसाब से वो करने चाहिए। पर हमारी सोच जो है, उसमें उसे फॉलो करने में कुछ तकलीफ नहीं है, पर हमारी सोच जो है वो ये है कि गणेश जी भी आखिर में कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव, वो मूर्त करें हम तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। इज इट ओके? यस प्रभु, ओके, थैंक यू वेरी मच। Anybody else, please?
आपको अपने कुछ पॉइंट्स रखने हो, प्रश्न नहीं, पॉइंट्स रखने हो, प्लीज फील फ्री। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रवचन। सॉरी हम लोग उधर लेक्चर में बैठे नहीं थे, लेकिन हम लोग आपका लेक्चर सुन रहे थे। नो थैंक यू। प्रभु जी यस थैंक यू। हम लोग सब हमने स्पीकर लगाया था और आपका लेक्चर सुन रहे थे। बहुत सुंदर आपने हर एक बात को समझा। सबसे बड़ी बात तो आपका हिंदी बहुत बढ़िया है प्रभु जी। बहुत सुंदर। आप हमको फील ही नहीं हुआ। आप शुरुआत से लेकर एंड तक बहुत सुंदर आप हिंदी में दे दीजिए प्रवचन प्रभु, क्योंकि हमको बहुत सुंदर। तो हम आपकी सेवा लेते रहेंगे इसी तरह। और कल वापिस 6 बजे हम लोग ये चर्चा सत्र में मिलेंगे आपके साथ, सभी के साथ। और मंदिर स्क्वाड राजकोट मंदिर की तरफ से सभी भक्तों की तरफ से मैं अमरीश प्रभु को अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रवचन उन्होंने दिया। और हम लोग सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के ये चर्चा सत्र पूरा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा।